Yesterday, actually, we were doing this rule, Markovnikov rule. Markovnikov rule. We were studying this rule in our last class. So according to this rule, what happens in asymmetric alkenes? In asymmetric alkenes, what actually happens? The partial positive particle or hydrogen or partial positive hydrogen is attacked or attached to that doubly bonded carbon, to that partial का sign, that doubly bonded carbon which has more directly attached hydrogens. तो जब बेटा ऐसे करोगे, पार्शियल पॉजिटिव को उस कार्बन पे अटैच करें, डबली बॉन्डेड कार्बन पे, जिस पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा है, तो पार्शियल नेगेटिव पे दूसरे कार्बन पे अटैच हो जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम है. So this gives major products. This gives major product या Markovnikov product. This gives major product or Markovnikov product. Okay. अच्छा. So after studying this thing, the next concept is carbocations and their stability. Carbocations and their carbo. Okay. Next concept is carbocations and their stability. And their stability. अच्छा. Now, beta, there is a concept कि जो alkyl groups हैं, when I say alkyl, तो alkyl can be methyl, alkyl can be ethyl, C2H5, alkyl can be propyl, C3H7, etc. These are alkyl groups. And alkyl groups are electron donating groups. Alkyl groups are electron donating groups. What it means कि alkyl group में ये ability होती है कि they shift their electronic cloud towards the other group. For example, R is alkyl group and alkyl group is attached to any other group. Suppose this is any other group to which this alkyl group is attached. So now this alkyl group will have an electronic cloud. इस alkyl group का electronic cloud होगा. And alkyl group has the ability to shift its electronic cloud towards the other group. This जो arrows मैंने बताए हैं ये shift है, shift in electronic cloud. So that is why we name this term as electron donating. Then we explain it like alkyl या R is electron donating group. Electron donating का मतलब ये है कि alkyl अपने electronic cloud को shift करता है towards the other group. R is electron donating group. ठीक है? Right? Once again, it's R group, and if it is attached to any other group, तो R का अपना एक electronic cloud होगा. This is the electronic cloud. तो ये R क्या करेगा? Alkyl क्या करेगा? अपने electronic cloud को shift करेगा towards the other group. तो ये जो shift करना है alkyl का अपने electronic cloud को towards the other group, इसको हम बोलते हैं electron donating effect. हम ये बोलेंगे कि alkyl जो है वो electron donating effect रखता है, right?
ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है इसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये बस टर्म है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसको कहते हैं। इस टर्म, ये टर्म एक्सप्लेन करता है इस चीज को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इज आल्सो known as positive inductive effect. Positive inductive effect. Right? So, अब आप देखें कि अगर के एल्काइल इज इलेक्ट्रॉन, एल्काइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो दिस पार्टिकल carbon has positive charge, this carbon is positively charged, ठीक है। अच्छा, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम टर्म यूज करते हैं कार्बोकेटाइन। दिस इज कार्बोकेटाइन, ओके। और नेक्स्ट कार्बोकेटाइन आई एम टेकिंग इट लाइक दिस इज CH3, this is CH3 and here I am placing H। और फिर उसके बाद the other carbocation I am showing it like this, CH3 H और H। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम ऐसे पार्टिकल को कार्बोकेटाइन कहेंगे। कार्बोकेटाइन मीन्स कि कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकेटाइन आपके सामने है, इसमें ये लेफ्ट वाला इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन, दिस लेफ्ट वन इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन, राइट। मिडल वाला सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। एंड जो राइट वाला है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, राइट। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, अगर वो 3 कार्बन से अटैच है तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन में ये वाला कार्बन जिससे पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 कार्बन से अटैच है, दैट इज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अच्छा, ये जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, दिस इज मोर स्टेबल। टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, primary carbocation is least stable. Why? Why tertiary carbocation is more stable? Why primary carbocation is less stable? Because only 3 bonds बना रहे। हाँ, टर्शियरी को बेटा देखें तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन में एल्काइल ग्रुप्स 3 हैं, ओके, देयर आर 3 एल्काइल ग्रुप्स। और we just studied कि alkyl group is electron donating group, alkyl is electron donating group। अब देखें कि ये alkyl भी अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव सेंटर, दूसरा alkyl भी अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव सेंटर, तीसरा alkyl भी ऐसा करेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा, समवट, ये पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम हो जाएगा, ये पॉजिटिव खत्म तो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ये मतलब नहीं है कि मिथाइल अपने सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को दे देगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एल्काइल का थोड़ा सा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर, ये मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। तो जो पॉजिटिव सेंटर है वो किसी हद तक जो है वो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, जबकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन में यू हैव 1 एल्काइल ग्रुप ओनली। प्राइमरी जी बेटा, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? थोड़ी सी पोलराइजेशन होगी, ये हम कह सकते हैं। पोलराइजेशन का वर्ड तो ना यूज करें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेटिंग इफेक्ट का लिखें कि जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है उसमें लेस एल्काइल ग्रुप हैं, यू कैन से लेस एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो और फिर एल्काइल हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, alkyl has electron donating effect, लेकिन चूंकि alkyl ग्रुप्स कम हैं तो हम बोलेंगे less electron donating effect, less electron donating effect।
या लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से प्राइमरी कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल, राइट। और जो ये वाला है टर्शियरी कार्बोकेटायन का आप लिखेंगे कि मोर एल्काइल ग्रुप्स, more alkyl groups present, alkyl ग्रुप्स ज्यादा हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दैट इज द रीजन tertiary carbocation is more stable and primary carbocation is less stable, ठीक है। So stability of carbocation decreases from tertiary carbocation to primary carbocation. So this is the concept. अच्छा, अब to next thing है बेटा, that is reaction mechanism. Now we need to know कि कैसे है reaction mechanism alkenes का. So for that बेटा हमने मैकेनिज्म को ट्रेस करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reactions. Okay, so electrophilic addition reactions happens in alkenes, you know this thing. So let's say if I take this alkene, ये alkene ले लें, this is CH3, this is CH3, this is CH3, sorry, this is H. Let's say I am taking this alkene, okay, and the other reagent is HBr. So electrophilic addition mechanism is of two steps, okay, two-step mechanism. So you have step one and then you have step two. It's two-step mechanism. थोड़ा carefully इसको देखें कि what I am doing. ये black marker से, ये जो red writing से है, ये may be given, आपको एग्जाम में इस तरह की सिचुएशन दे सकते हैं और फिर बाकी आपने ट्रेस करना। तो जो मैं ब्लैक मार्कर से वर्किंग कर रहा हूँ, ये सारी एज ए स्टूडेंट मेरी वर्किंग है। तो पहले तो आप बॉन्ड पोलैरिटी शो करें H और Br पे। यू नो कि Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, more electronegative atom gets, yes, partial negative, and hydrogen is less electronegative. So being less electronegative, hydrogen will be taken as partial positive. It's okay, बेटा, nothing. मैं रिवाइज कर दूंगा आपको, बस यहाँ इसको फोकस करें. What we are studying is mechanism for electrophilic addition. अच्छा बेटा, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आपने शो करना है मैकेनिज्म में। ये बात जरा ध्यान में रखें कि मैकेनिज्म में मार्किंग बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। तो इट कैन बी अराउंड 3 मार्क्स क्वेश्चन इज, आपने ये फिल करना है, मैकेनिज्म ट्रेस करना है, 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो मार्किंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होगी, ये पॉइंट्स का ख्याल रखें। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव मस्ट शो करना है। उसके बाद आपने ये डबल बॉन्ड में एक वन ऑफ द बॉन्ड इज सिग्मा एंड द अदर बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, योर डबल बॉन्ड ना, one of the bond is sigma bond, the other bond is pi bond. So you have to show pi electrons. Pi bond के pi electrons show करें, और बेटा pi electrons act as nucleophile, act as nucleophile. जो pi bond के दो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्ट करते हैं एज न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखें, न्यूक्लियोफाइल ऐसा पार्टिकल होता है जो पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है। तो ये पाई बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये अटैक करेंगे ऑन दिस पार्शियल पॉजिटिव सेंटर, ठीक है। और फिर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं HBr में, ये बॉन्ड विल ब्रेक हेटेरोलिटिकली। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टू दिस Br एंड दिस बॉन्ड इज ब्रोकन
this bond is broken heterolytically. Bond broken heterolytically. ठीक है, तो अब व्हाट हैपेंड एक्चुअली, ये कार्बन डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड रह गया. यू हैव H here, you have H here, you have CH3 here, and then you have CH3 here. अच्छा, अब जो वो पाए इलेक्ट्रॉन्स ने H पे अटैक किया था, उस H को आप कहाँ अटैच करोगे अगर आपने मेजर प्रोडक्ट डेवलप करना है? हाँ, जिस कार्बन पे डबली बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन थे, यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन अटैच करोगे तो यू विल गेट मेजर प्रोडक्ट, राइट. जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन पे, उस पे पार्शियल पॉजिटिव वाले को अटैच करें. नहीं ना, ऊपर ये जो 3 हाइड्रोजन हैं, ये डबली बॉन्डेड कार्बन के तो नहीं है ना, ये तो इस कार्बन के हैं. यू हैव टू चेक द डबली बॉन्डेड कार्बन. डबली बॉन्डेड कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? तो डबली बॉन्डेड कार्बन तो ये थे ना, ये जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, और ये डबली बॉन्डेड कार्बन नीचे वाला. ऊपर वाला जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पर 0 हाइड्रोजन अटैच्ड है. नीचे वाला जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड थे. तो अकॉर्डिंग टू मोरकोनिकॉफ रूल, आपने पार्शियल पॉजिटिव उस पे अटैच करना है जिस पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन ज्यादा है, तब आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, तो अच्छा, अब आप देखें, ये ऊपर वाला जो कार्बन है, ये बॉन्ड डेफिशिएंट है कि नहीं? ऊपर वाला कार्बन देखें, उसका बॉन्ड डेफिशिएंसी है. बॉन्ड डेफिशिएंसी है तो इट्स पॉजिटिवली चार्ज ना. बॉन्ड डेफिशिएंट है. एक्चुअली जो पाए बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो तो दोनों कार्बन के थे. तो जब वो पाए बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये ऊपर वाले कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. दैट इज व्हाई, या बॉन्ड डेफिशिएंट हो गया. दैट इज व्हाई वी आर प्लेसिंग पॉजिटिव चार्ज देयर. और फिर देखें, जो HBr बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ब्रोमाइड आयन बनेगा उसकी वजह से. HBr को नोटिस करें, HBr ब्रेक हो तो ब्रोमाइड आयन बनेगा. ब्रोमाइड आयन will attack here on this carbon. So you will get product. We will get product like this. Any confusion? अच्छा, इसमें बेटा ये बात मुझे बताएं कि ये जो कार्बोकेटाइन बना स्टेप 1 के बाद, ये विच कार्बोकेटाइन इज दिस वन? स्टेप 1 के बाद जो कार्बोकेटाइन बना, ये कौन सा कार्बोकेटाइन था? ये टर्शरी कार्बोकेटाइन था. क्या था? दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन. ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से अटैच है. दैट इज व्हाई दिस कार्बोकेटाइन इज टर्शरी कार्बोकेटाइन. और अभी हमने ऊपर डिस्कशन की कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल कार्बोकेटाइन. टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल कार्बोकेटाइन. ठीक है सर, बेटा ये आप ध्यान में रखेंगे, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल, हमने डिबेट की. Since tertiary carbocation is stable carbocation, that is why the product will be major product. चलें अभी सिर्फ मैकेनिज्म ट्रेस करें, बाकी डिस्कशन करते हैं बाद में. ठीक है, इसमें जो स्टेप 1 है दैट विल बी स्लो स्टेप. स्टेप 1 इज स्लो, और स्टेप 2 जो है ये फास्ट स्टेप होगा. अच्छा बेटा, ये ऐसा क्यों है? व्हाई स्टेप 1 इज स्लो, Why step 2 is fast? हाँ, yes. Step 1 में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है. स्टेप 1 में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है. बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है. बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई स्टेप 1 इज स्लो स्टेप. लेकिन स्टेप 2 इज फास्ट स्टेप. स्टेप 2 इज फास्ट. स्टेप 2 क्यों फास्ट है बेटा? क्योंकि स्टेप 2 में बॉन्ड मेकिंग हो रही है. ठीक है, स्टेप 2 में बॉन्ड मेकिंग हो रही है, और मेकिंग भी एक्चुअली नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है, जो ब्रोमाइड है, वो अटैक कर रहा है कार्बोकेटाइन. ठीक है, तो बॉन्ड मेकिंग की वजह से स्टेप 2 इज फास्ट. ठीक है, अच्छा अब बेटा इसको, इस डिस्कशन को आप लिंक कीजिए. मैंने आपको काइनेटिक्स में
क्या बताया था? रिएक्शन मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स हैं? मैकेनिज्म के 2 स्टेप्स हैं। तो व्हाट अबाउट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? हाँ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में नंबर ऑफ पीक्स विल बी 2, क्योंकि द कॉन्सेप्ट वी स्टडीड was कि number of steps in mechanism will be equal to number of peaks. Number of peaks in energy profile diagram will be equal to number of steps. तो ये हमने पढ़ा था। और फिर बेटा एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये स्टेप 1 और स्टेप 2 के दरमियान दिस इज द पोजीशन, तो दिस पोजीशन इज फॉर इंटरमीडिएट, ये जिसको मैंने डॉट किया या जिसको मैंने एक्स लगाया, दिस एक्स इज इंटरमीडिएट। और इस केस में इंटरमीडिएट क्या है आपके पास? हाँ, कार्बोकेटाइन जो है वो आपके पास इंटरमीडिएट है। दिस कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट, दिस इज एक्स, सो इंटरमीडिएट इज दिस कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट बेटा मैंने क्या बताया था? व्हाट इज इंटरमीडिएट? हाँ, ऐसा पार्टिकल जो एक स्टेप में प्रोड्यूस हो और नेक्स्ट स्टेप में यूज्ड अप हो जाए, दैट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। नहीं, ये बस जनरल मैं नंबर ऑफ पीक्स बता रहा हूँ कि इसके एक्सो या एंडो होने की डिस्कशन को आप मत रखें, कंसिडर मत करें, बस सिर्फ ये पता हो कि 2 स्टेप्स हैं तो 2 पीक्स हो सकते हैं, 2 पीक्स होंगे, राइट जी। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, चलें इसको फिर बाद देखें, मैं शेयर द रिकॉर्डिंग तो नोट्स बना लेना बाद में। अच्छा बेटा, now let us consider the other viewpoint. Let's say if I take alkene like this is alkene, and I'm taking 2 hydrogens here, 2 hydrogens here, and this is methyl, this is methyl. Suppose I'm reacting this alkene with steam, so reaction mechanism I have to trace. तो mechanism के कितने बेटा steps हैं? हाँ, इस mechanism का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मैकेनिज्म का नेम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है। कितने स्टेप मैकेनिज्म है बेटा? 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ये पॉइंट्स पता होना चाहिए, 2 स्टेप्स मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, 2 स्टेप्स में स्टेप 1 विल बी स्लो स्टेप, स्टेप 1 विल बी स्लो स्टेप, स्टेप 2 विल बी फास्ट स्टेप, स्टेप 2 फास्ट स्टेप होगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, रिएक्शन इज इनिशिएटेड, रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा? रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय, जी बेटा कैसे स्टार्ट होगा रिएक्शन? मैकेनिज्म ट्रेस करने के लिए यू हैव टू शो दिस पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, वरना मार्क्स कट जाएंगे। बेटा ये पार्शियल का साइन है, ओके, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव शो करना है, फिर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शो करें, और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली अटैक करेंगे इस पार्शियल पॉजिटिव सेंटर को। ये जो एरो मैंने बनाया है, इस एरो को कहते हैं कर्ली एरो। ये जो अटैक के लिए मैंने एरो बनाया है, इस एरो को क्या बोलेंगे? दिस एरो इज नोन एज कर्ली एरो। हमेशा एरो की टेल पे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एरो की टेल पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स, और एरो के हेड पे क्या होना चाहिए? पार्शियल पॉजिटिव पार्टिकल। हमेशा एरो की टेल पे इलेक्ट्रॉन्स और हेड पे पार्शियल पॉजिटिव होना चाहिए। इस एरो को बोलेंगे क्या? कर्ली एरो बोलेंगे। अब फिर वापस आए, रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय, रिएक्शन कैसे इनिशिएट हुआ? बाय द अटैक ऑफ, आगे, pi electrons on partial positive center। इस तरह रिएक्शन इनिशिएट हुआ, ठीक है। और फॉलोड बाय, उसके बाद फिर क्या होगा? फॉलोड बाय अटैक तो हो गया, फॉलोड बाय ये होगा कि ये H और OH या H और O का जो बॉन्ड है ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा, फॉलोड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। हेट्रो जिधर अटैक हुआ जिस रिएजेंट पे, उसका बॉन्ड फिर हेट्रोलिटिकली ब्रेक हुआ, तो फॉलोड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग
इन द रिएजेंट, जिस रिएजेंट पे अटैक हुआ। ठीक है, कंफ्यूजन। तो फिर अब जब ये हो गया ऐसा, तो नाउ अब आप बताओ कि फॉर मेजर प्रोडक्ट के लिए वेयर शुड आई अटैच दिस हाइड्रोजन? हाँ, जो स्टीम का हाइड्रोजन है वो ऊपर लगा दें, तो नीचे वाला कार्बन बॉन्ड डेफिशिएंट हो गया ना, बॉन्ड डेफिशिएंट हो गया तो वो पॉजिटिव उसको शो करें, यानी ये कार्बोकेटाइन बना, और OH नेगेटिव बन गया। नाउ दिस, ये जो पॉजिटिव बना ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन, क्या है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। This is intermediate, and this tertiary carbocation intermediate is stable. Okay, हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्टेबल है। अब ये जो आपके पास पार्टिकल इसमें लोन पेयर हैं, दिस विल अटैक हियर ऑन दिस कार्बोकेटाइन एंड यू विल गेट प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट्स मेजर प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट नाउ यू गॉट इज मेजर प्रोडक्ट। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, ये मेजर प्रोडक्ट क्यों था बेटा? ये मेजर प्रोडक्ट इसलिए है कि करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन टर्शियरी था और स्टेबल था। देखो, जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, जो कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा वो लेस अमाउंट में बनेगा। तो चूंकि कार्बोकेटाइन टर्शियरी था और स्टेबल था, इसलिए ज्यादा अमाउंट में बना, तो जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट है, दिस करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल।